Hello everyone, welcome to Nutrition Gyan Prabha official platform. So today we are going to discuss specifically the topic from Unit 2, that is your nutrition and dietetics. So for UGC NET Home Science and WB Nutrition SLST examination and definitely your WB set nutrition. So for all of these individual examination, you are recommended to follow this class, and definitely it is going to be very much helpful for the concept building, and as well as some of the question and answer if possible we will be in the end discussing, right? So just listen very carefully regarding each and every topic, and try to understand that what exactly we are just not only discussing, but what kind of questions we are supposed to get in the examination also. So all of this, it will be, the first is the concept aspect, and then what kind of questions we are going to get in the examination. So that will be discussed. Right? So GI, the term, probably you have heard that nothing but gastrointestinal, right? So GI means specifically the GI tract related diseases. So there are different individual concepts. So the first most important concept is celiac disease. Probably you have earlier also heard this terminology, celiac disease, right? So celiac disease is an autoimmune disorder. So autoimmune means nothing but when your own immunity system is basically not providing the immunity, rather than that attacking your immune system. So for every one of you, as it is a bilingual class, तो जब आपका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो आपके ही अगेंस्ट में काम करना शुरू कर देता है, so that is called autoimmunity, right? So celiac disease is also kind of an autoimmune disorder that triggers by eating gluten. So during the discussion, definitely I am going to discuss and recommend you that what exactly the point you have to remember. So that is nothing but the gluten. So this term you have to remember, as these individual questions have been asked numerous times, that what exactly the responsible factor which is basically associated for with celiac disease. So that is gluten. एंड ऑल्सो आपको ये भी पूछा गया है ऑलरेडी 2-3 बार कि ग्लूटेन का सोर्सेस क्या है. महाराष्ट्र सेट हो गया, यूजीसी नेट हो गया, तो इसमें 2-3 बार ऑलरेडी जो ग्लूटेन का सोर्सेस है उससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है. तो इसका अलग से थोड़ा बहुत और भी नाम है, तो अगर WB सेट में भी आ सकता है, एंड आपका जो WB SLST होने वाला है 2020 में, फिर WB SLST एग्जामिनेशन न्यूट्रिशन का, उसमें भी ये सब ये टाइप का, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ डाइट थेरेपी ऑल्सो. सो इसमें ये कंसेप्ट ऑलरेडी मैंने पहले ही बोला है कि इम्पोर्टेंट है. तो इट इज ऑल्सो नोन एज सीलिया स्प्रू, मोनोट्रॉपिकल नॉन ट्रॉपिकल स्प्रू और ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी. तो अगर ये अलग से कोई भी ये 3 टर्म्स यूटिलाइज किया गया होगा एंड आपको पूछा गया होगा कि ये कौन सा डिजीज है एंड इसमें लाइक व्हिच एग्जैक्टली द रिस्पांसिबल फैक्टर फॉर दिस, तो ये नथिंग बट द सीलियाक डिजीज ओनली. So now we have to know regarding this gluten term. So this is not a term, rather it is a type of protein which is specifically present in wheat. Please do remember this line very carefully, if possible write it down. So wheat हो गया, barley हो गया, rye हो गया, and specifically these 3 only. और भी कुछ कुछ ग्रेन में ये मिलता है, लेकिन wheat, barley and rye ये तीन जो स्पेसिफिक आपका ग्रेन हो गया, इसमें ग्लूटेन का जो अमाउंट है और जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा होता है, राइट? तो इसीलिए definitely you have to remember these 3 very carefully. So it is not the same thing as gluten intolerance. So अगर आपको कोई बोले specifically, if someone is asking you that what is does gluten intolerance and celiac disease are same,
तो no, both of these conditions are not same. For example, who are suffering from gluten intolerance, आपने lactose intolerance भी सुना होगा. तो gluten intolerance means someone is unable to digest gluten. Right? So people with gluten intolerance may have some of the same symptoms and may want to avoid gluten, but they don't show an immune response or damage to the small intestine. So अगर autoimmune हो गया, that is specifically a condition जिसमें immunity system ही डैमेज होगा, बेसिकली बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो अगेंस्ट द बॉडी वर्क करेगा. लेकिन अगर आपने बोल दिया, आपने कंसिडर कर लिया सीवियर ग्लूटेन इंटॉलरेंस, तो इसका मतलब ये होता है कि जिसमें जो ग्लूटेन का जो इंडिविजुअल जो ग्लूटेन इंटॉलरेंस से सफर कर रहा है, उसका जो दैट इंडिविजुअल इज नॉट हैविंग द एंजाइम व्हिच इज बेसिकली एसोसिएटेड विद ग्लूटेन डाइजेशन, राइट. तो इसीलिए फॉर एग्जांपल लैक्टोज इंटॉलरेंस, तो इसमें क्या होता है, एंजाइम का डेफिशिएंसी, स्पेसिफिक एंजाइम जो लैक्टोज डाइजेशन में हेल्प करता है, तो लैक्टेज, तो उसका एब्सेंस होता है, इसीलिए उसको हम लैक्टोज इंटॉलरेंस और दैट इंडिविजुअल पर्सन विल बी सेंसिटिव टू लैक्टोज. The same thing is definitely happening here too. So that is also same in case of celiac disease. Celiac sensitive gluten sensitivity or gluten intolerance. So definitely from here you are going to learn, remember what exactly this celiac disease and what exactly gluten intolerance. तो इसमें जो डिफरेंस है ना, वो आपको याद रखना है. आई थिंक दिस मच इज वेरी क्लियर टू यू. सो अगर इसमें भी आप यहाँ पर भी एक स्पेसिफिक पिक्चराइजेशन आपको दिया हुआ है, तो वो भी आप देखिए. तो अगर आपको बोला गया है कि सीलियाक डिजीज में क्या होता है, तो यस, इन केस ऑफ सीलियाक डिजीज आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होता है वो डैमेज हो जाता है, डैमेज होता है बाकायदा. लेकिन अगर आप नॉर्मल विली ऐसा होता है, लेकिन सीलियाक डिजीज में ये सब डैमेज ऑलरेडी, इट इज ऑल अ डैमेज. तो यस, सो दैट इज द एस्पेक्ट हियर. सो नाउ सिम्टम्स में एब्डोमिनल पेन होता है, एनीमिया होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, हार्टबर्न एंड डायरिया भी देखा जाता है. तो ये जो चीजें हैं वो सीलियाक डिजीज में भी आता है. मतलब ये जो सिम्टम वाला पार्ट है ना, वो दोनों ही इन केस ऑफ बोथ दिस थिंग, बोथ एस्पेक्ट, मतलब ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो गया एंड आपका जो सीलियाक डिजीज हो गया, तो समटाइम्स द सिम्टम्स आर मतलब थोड़ा बहुत सिमिलर सिम्टम भी देखा जाता है. दैट डज नॉट मीन द सीवियरिटी विल बी सेम. तो सीवियरिटी सेम नहीं होता. डेफिनेटली सीलियाक डिजीज इज मच मोर सीवियर देन ग्लूटेन इंटॉलरेंस, राइट. क्योंकि उसमें इम्यूनिटी सिस्टम डिफरेंट, मतलब अगेंस्ट में जाके काम, बॉडी के अगेंस्ट में, मतलब अगेंस्ट द बॉडी इट इज गोइंग टू वर्क. सो आपने ये पिक्चर में भी देखा है, राइट. तो इसमें डैमेज हो जाता है सीलियाक डिजीज में. ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विली होता है ना, जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, तो वो दैट इंडिविजुअल नॉर्मल विली और विलाई इज बेसिकली डैमेज्ड इफ यू आर कंसिडरिंग द सीलियाक डिजीज, राइट. सो ये आपको याद रखना होगा. सो नेक्स्ट 2 नंबर पे आता है स्टीएटोरिया. तो स्टीएटोरिया ये भी एक जीआई डिसऑर्डर है. तो पहले आपने देख लिया सीलियाक डिजीज, इसमें मैंने आपको स्पेसिफिकली बोला है कंसेप्ट के अलावा डिफरेंस जो है ये बोथ सीलियाक डिजीज एंड सीलियाक ग्लूटेन इंटॉलरेंस और सेंसिटिविटी में, वो आप याद रखना. एंड ये जो सोर्सेज होता है ना ग्लूटेन का, ये 2-3 बार यूजीसी पूछा है, यूजीसी होम साइंस का जो पेपर होता है उसमें, तो वो आप जरूर याद रखिएगा. एंड ये क्वेश्चंस मैं डेफिनेटली बोलूंगी. दिसंबर में WB सेट भी होने वाला है एंड सितंबर में WB SLST होने वाला है, तो ये बोथ एग्जामिनेशन के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट. नेक्स्ट स्टीएटोरिया. Steatorrhea is basically it's a condition where excessive fat in the stool you are going to observe. लेकिन ये होगा किस रीजन से? बिकॉज ऑफ द फैट मैल एब्जॉर्प्शन और
मैल डाइजेशन। तो क्या होता है, आप कंज्यूम कर रहे हो एक अमाउंट का, प्रोबेबली आप फैट कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन क्या होता है, ड्यू टू सम ऑफ द रीजन आपका वो बॉडी वो प्रॉपरली फैट को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। तो अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो स्टूल के माध्यम से बॉडी से निकल जाएगा, राइट? इट विल गोइंग टू पास फ्रॉम योर बॉडी बाय द स्टूल। सो व्हाट exactly is happening here? The stool is basically fatty stool. Okay, so fat एब्जॉर्प्शन ना, अच्छे से एब्जॉर्प्शन ना होने के कारण से ये बॉडी स्टूल के माध्यम से बॉडी से बाहर जाएगा, एंड जो फैटी स्टूल होगा इसको, इस टोटल कंडीशन को भी स्टेटोरिया बोला जाता है। नाउ अगर आप डूज एंड डोंट्स देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अ nutritionist perspective also. If someone who are right now is present having this class, attending this class, is basically to approach any examination, or you are practicing as a nutritionist, so आपके लिए भी this individual class is going to be very much helpful, right? So do's में क्या हो जाएगा, आपको like definitely hydrated होना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते ही हैं फैट डाइजेशन के लिए, क्योंकि liver is the biochemical lab of our body in case of human body. So yes, to sustain or to keep your liver healthy, you have to consume much more, like a proper quantity of water, at least 3 liters per day for an adult person. So yes, hydrated होना जरूरी है, तभी ये चीज अच्छे से like fat digestion as well as absorption अच्छे से होगा। Then आपका एंटासिड एंड एंटीडायरियल मेडिसिन भी लेना जरूरी होता है। डेफिनेटली ये आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट करोगे कि कंडीशन आपका क्या है, तो अगर लगेगा कि हाँ उतना सीवियर कंडीशन है, देन यस एंटीडायरियल मेडिकेशन भी जरूरी होगा एंड आपको लेना पड़ेगा। देन ADEK एंड B12, तो विटामिन जो अलग से फॉर हेयर इज बेसिकली आपको बोला गया है, ये जो विटामिन है वो भी स्पेसिफिकली has to be added on by outside, because when you are not taking fat regularly, then you have to take the supplements of fat soluble vitamins also in case of steatoria, right? Next, do for in case of do's, minerals like folic acid, magnesium, iron and calcium, ये जो individual minerals है, yes, for core student also, these are do's dear and these are do's. So for minerals like folic acid, जैसे मैंने दिखाया हुआ है, तो for the minerals also you have to take the supplements, because see sometimes it happens if you are considering a food source in which fat as well as other minerals are also present, then you have to omit out some of the sources for your considering the digestion capacity of yours, right? So who is unable to digest, or probably the absorption of fat is not properly happening, basically the steatoria is existing in your body, then in case of that individual aspect, probably you have to consider or you have to avoid some of the sources, and अगर आप sources को avoid कर रहे हो, in that perspective you have to take some supplements also. And there are some don'ts like dietary fibers, dietary fats, smoking you have to avoid, alcohol you cannot take, then potassium oxalate. So these individuals are anti-nutrient only. So yes, you have to omit out these individual sources also. Severe case, अगर steatoria मतलब this condition it get worsen, मतलब बहुत ही सीवियर स्टेज में अगर ये पहुंच गया है, तो क्या होता है, क्या आपको मतलब रिकमेंडेशन क्या फॉलो करना चाहिए? So for that, in that case, you have to take intravenous fluid, antidiarrheal medication, proton pump inhibitors medicine also you probably will be like recommended by the doctors. Then pancreatic enzyme replacement therapy sometimes you probably have to take, and then major histocompatibility complex. तो ये तो individual last line है. So all of this major histocompatibility complex oil. So probably who are suffering from this individual condition, they are usually unable to digest the normal oils like mustard oil हो गया, and your hydrogenated oil, butter, ghee, so these things. So in that case, this major histocompatibility complex oil probably they will be recommended, right? So yes,
these are the individual aspects someone has to follow in case of steatorrhea. Next. So now irritable bowel syndrome, IBS. So अगर आपने IBS लाइक जो दिस इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अगर आपने ये टर्म शायद पहली बार नहीं सुना होगा, this is very old. Right now, this condition is kind of a common, like definitely a very common condition, and also very like not so. You cannot take it very normally. You should not take it normally. This is a kind of a serious condition, and yes, proper medication as well as proper diet. Proper dietary management is very much necessary if this condition is not very much worsen, मतलब बहुत ही सीवियर अगर नहीं हुआ है तो by diet also you can probably you can get over from it. पूरी तरह से आप क्योर आपको मिल सकता है अगर बहुत ही सीवियर नहीं हुआ है तो. So a functional GI disorder characterized by abdominal pain, discomfort alongside a change in the bowel habits. मतलब सिम्टम्स में ये जो चीजें हैं आपको याद रखना होगा, क्योंकि जो चेंजेस आता है यही आता है. क्या हो सकता है? एब्डोमिनल पेन इज वेरी कॉमन, ब्लॉटिंग होता है, गैस फॉर्मेशन इज वेरी कॉमन, बहुत ही इजीली डायरिया हो जाता है, ठीक है, एंड देन कॉन्स्टिपेशन ऑल्सो, मतलब कभी डायरिया कभी कॉन्स्टिपेशन, सो ये साइड बाय साइड लगा रहता है. तो ये जो चीज है ना ऑल टुगेदर यू हैव टू डेफिनेटली रिमेम्बर दिस इन केस ऑफ लाइक in today's life we are going through like for every individual. अगर आप स्टूडेंट हो तब भी, अगर आप वर्किंग हो तब भी, आजकल का जो दौर है, जो लाइफ स्टाइल है, वो बहुत ही नॉट सो डिसिप्लिन, लाइक वी कैन से डिसिप्लिन. मतलब फॉर एग्जाम्पल जो लोग हम वर्किंग है उन लोगों के लिए आफ्टर रीचिंग द होम प्रोबेबली वी आर नॉट टेकिंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर और फ्रूट्स and like nuts, and 50% of 45 to 50% of balanced diet has to be from your grain and cereals products. So अगर आप हर दिन जोमेटो स्विगी कर रहे हो एंड ऑयली फूड रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हो, फैटी फूड ऑयली फूड, प्रॉपरली वेजिटेबल्स आप आपके जो रेगुलर डाइट है उसमें आप नहीं डाल रहे हो, तो ये सब चीजें बहुत ही कॉमन है, राइट. सो अगर कोई इंडिविजुअल लाइफ टाइम IBS में मतलब सफर कर रहा है तो कैसा वो चेंजेस और इसके लिए होता क्या है उसमें, तो इट इज अ काइंड ऑफ लाइक दिस इज अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ अ कंडीशन दिस IBS, क्योंकि अगर हो सकता है किसी को स्पेसिफिक एब्डोमिनल पेन ये सिम्टम है एंड फॉर द सेम IBS इज सफरिंग द अदर इंडिविजुअल इज प्रोबेबली नॉट हैविंग दिस इंडिविजुअल सिम्टम. तो ये कहना मुश्किल होगा कि अगर आप IBS से सफर कर रहे हो, आपका अगर कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल सिम्टम है तो आपके ही एक फ्रेंड को भी सेम सिमिलर सिम्टम्स देखा जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, राइट. सिम्टम्स में लास्ट अ फ्यू डेज, वीक और इवन मंथ्स एट अ टाइम. तो यस, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ऐसा भी देखा जाता है कि किसी किसी के लिए ये 1 दिन तक, 2 दिन तक, 1 हफ्ते तक भी लास्ट करता है, एंड नॉट ओनली दैट, 1 महीने तक भी ये सेम ब्लॉटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, दिस थिंग्स probably you can see. So yes, surveillance is needed and proper dietary maintenance is must. Symptoms can change over time and may get more or less severe. तो जैसे मैंने बोला सीवियर हो सकता है, इसीलिए हमको पहले से ही चेक प्रॉपरली डाइट फॉलो करना चाहिए. So for some IBS can be a chronic and debilitating condition. Means nothing but basically ये क्या होता है ऑल टुगेदर, ये जो कंडीशन है थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अगर आपके पास कुछ है भी तो भी मतलब आप कंफ्यूज हो सकते हो कि कभी सिम्टम आ रहा है, एब्डोमिनल पेन कभी हो रहा है तो कभी नहीं हो रहा है, ठीक है. तो आपका ब्लॉटिंग कभी हो रहा है
तो 2 दिन के बाद ऐसा भी हो सकता है कि अभी नहीं हो रहा है। तो आपको ये देखना है कि हाँ, जो भी सिम्टम्स है वो क्या कॉमनली आपको बार बार, मतलब नॉट इन अ रेगुलर बेसिस बट इवन आफ्टर सम इंटरवल, मतलब 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद एक ही चीज बार बार क्या आप देख रहे हो, तब भी आपको कंसिडर करना है कि हाँ, आपको आईबीएस का टेंडेंसी है। And in that case, take you have to go to a proper nutritionist who are practicing, and as well as definitely if possible, huh? You definitely have to go to a doctor also if the condition is very severe, right? If the symptoms are continuous and you are like suffering with all of these symptoms for a very long, so yes, irritable bowel syndrome is basically आपका जो कॉज हो गया और सिम्टम्स हो गया, ये ओवरऑल सेम ही होगा। तो जैसे मैंने बोला, ये जो ब्लू कलर में अलग से मैंने लिखा हुआ है ना लाइंस, तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के जो एग्जामिनेशन का जो मैंने अब तक मेंशन किया है, तो इसके लिए ये नोट मैंने अलग से लिखा हुआ है कि जो पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यस, आप क्या करोगे, आप उसका जो प्रॉपर जो एक्सप्लेनेशन और राइट डाउन मैंने इधर बोला है टोटल कंसेप्ट, और वो आप याद रख लो, which is important. So now classification. See, IBS का एक proper classification भी होता है. Sometimes it is known as Crohn's disease, sorry, and sometimes it is known as colitis ulcerosa or ulcerosa. So ये जो भी आप प्रोनाउंस कर रहे हो, अल्सेरोसा एंड Crohn's disease, so ये IBS का ही 2 फॉर्म है। So inflammatory bowel disease is a term for 2 conditions. One is your Crohn's disease and ulcerative colitis, right? So that are characterized by chronic inflammation of the GI tract. तो yes, अगर आपने देखा होगा तो ये Crohn's disease है जिसमें इंटरवल में इन्फ्लेमेशन देखा जा रहा है, थोड़ा एमएस के पास, थोड़ा का हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, ठीक है। मतलब ये जो भी आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है, इसमें अगर इंफ्लेमेशन है भी तो भी प्रॉपरली आप, इन केस ऑफ योर कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, एक प्रॉपर डिसकंटिन्यूएशन नहीं होगा, कंटिन्यूएशन में इंफ्लेमेशन होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही पेनफुल होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, कौन सी इसमें इंटरवल में थोड़ा इधर, थोड़ा इंफ्लेमेशन इधर, थोड़ा रेक्टम के पास, तो यस, तो ये आपको कंसिडर, मतलब डिफरेंस याद रखना होगा फॉर एग्जामिनेशन। सो नाउ हियर आई हैव प्रोवाइडेड sorry, so here you can say the proper difference between these 2 conditions also. So in case of ulcerative colitis, definitely कोलोन का जो लेफ्ट साइड कोलाइटिस, पैनकोलाइटिस, बैकवर्ड कोलाइटिस, तो ये रेगुलर में होगा। इसमें कोई मतलब इंफ्लेमेशन में कोई लाइक जैसे मैंने पिक्चर में भी आप लोगों को दिखाया है, डिसकंटिन्यूएशन नहीं होगा। लेकिन Crohn's डिजीज जो होता है, तो इसमें क्या होगा, आपको ये देख लीजिए लास्ट वाला जो पॉइंट है, इसमें ये थोड़ा बहुत फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट मेंशन किया गया हुआ है। तो अगर वो आप पॉसिबल हो तो याद रख लेना, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो तो ठीक है। लेकिन आपको ये याद जरूर रखना होगा कि कौन सी डिजीज में इंफ्लेमेशन डिसकंटिन्यूअस होता है, इंटरवल में होता है, एंड इन केस ऑफ योर अल्सरेटिव कोलाइटिस इट हैज टू बी इन अ कंटिन्यूअस मैनर, एब्सेंस नहीं हो। नेक्स्ट, फीवर, एब्डोमिनल पेन, डायरिया और वेट लॉस Crohn's डिजीज में देखा जाता है। अल्सर में भी फीवर, एब्डोमिनल पेन, ब्लडी डायरिया, यस, ब्लडी डायरिया इज वेरी कॉमन इन केस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है, क्योंकि ये पूरा मतलब विदाउट एनी गैप देख रहे हो, टोटल इंफ्लेमेशन है। तो यस, ब्लड तो डायरिया में, लाइक इन केस ऑफ विथ स्टूल ओनली, ब्लड इज आल्सो वेरी कॉमन इन केस ऑफ दिस अल्सरेटिव कोलाइटिस। लेकिन Crohn's डिजीज हो गया, इसमें ब्लडी डायरिया नहीं होगा, ठीक है, फैटिग होगा। जो चीजें अलग से है वो भी सिमिलर होगी, लेकिन ब्लडी डायरिया एक स्पेसिफिक सिम्टम है जो कोलाइटिस में होगा, Crohn's डिजीज में नहीं होगा।
ठीक है, तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट इज योर पेप्टिक अल्सर। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एपी एग्जामिनेशन ओनली। WBSLST के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये WBSLST होने वाला है सितंबर में, उसके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So peptic ulcer is a sore in the lining of your stomach or your duodenum. The first part of your small intestine is duodenum only. So burning stomach pain is the most common symptom. So it start between the meals or during the night. मतलब पेन कब कब होगा? तो between the meals, जब आप एक मील खा रहे हो उसके बाद एक मील का टाइम हो गया है, उसके दौरान जो टाइम आप मतलब उसका इन बिटवीन जो टाइम आप गैप ले रहे हो, मतलब खाना नहीं खा रहे हो, उस टाइम में भी आपको पेन हो सकता है। एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम ऑल्सो यू कैन सफर फ्रॉम पेन। ब्रीफली स्टॉप्स इफ यू ईट और टेक एंटासिड। तो अगर आपने एंटासिड ले लिया तो वी डोंट नो दैट इन केस ऑफ आपका जो स्टोमक अल्सर होता है, स्टोमक अल्सर में क्या होता है, स्टोमक में आपका एक सेल सिक्रेट होता है, ठीक है। तो स्टोमक में बेसिकली यू कैन सी द लाइनिंग। तो स्टोमक में भी ऐसा ही लाइनिंग क्रिएट हो जाता है इन केस ऑफ आपको पेप्टिक अल्सर, स्टोमक अल्सर होंगे। तो यस, इसीलिए एंटासिड दिया जाता है कि वो जो शोर फॉर्मेशन हो रहा है उसके ऊपर अलग से एसिड ना गिरे, ठीक है। तो एसिड इज द मेन प्राइमरी एस्पेक्ट जो एंटासिड से न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो पेन थोड़ा मिनट तक लास्ट करता है, कभी कभी एक दो घंटा भी हो जाता है। तो दिस इज वेरी लाइक सफरिंग, मतलब पेनफुल बहुत ही ज्यादा होता है। कम्स एंड गोज फॉर सेवरल डेज। तो ऐसा भी होता है कि आता है फिर चला जाता है पेन, तो वो भी हो सकता है। पेप्टिक अल्सर हैपेंस व्हेन द एसिड दैट हेल्प यू डाइजेस्ट फूड डैमेज द वॉल्स ऑफ द स्टमक। तो स्टोमक अल्सर जैसे मैंने बोला था वैसा ही है कि अगर आपका बेसिकली आप एम्प्टी स्टोमक घूम रहे हो, मतलब खा नहीं रहे हो ड्यूरिंग द टाइम यू मस्ट हैव टू ईट, तो क्या होता है इस टाइम पे जो एसिड सिक्रेट होता है स्टोमक में, वो जाके ऐसा एक इंडिविजुअल स्टोमक में लाइनिंग शोर फॉर्म, मतलब गड्ढा जो आप देख रहे हो, तो ये ड्यू टू एसिड हुआ है। तो क्या हो बेसिकली क्या हुआ है इधर, तो गड्ढा फॉर्म, ये जो गड्ढा मैं बोल रही हूँ तो दैट इज शोर, ठीक है। इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन क्यों हुआ है, क्योंकि जो नेचुरल एसिड प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो आके इधर शोर फॉर्म कर रहा है, तो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, राइट। तो ये जो चीजें हैं इसीलिए इसको स्टोमक अल्सर भी बोला जाता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये जो नाम आप देख रहे हो इसको भी आप जरूर याद रख लेना। तो the most common cause is infection with the bacterium called Helicobacter pylori. So another cause is the long-term use of non-steroidal anti-inflammatory medicine, that is sometimes in a like short form NSAIDs. तो ये आप नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी जो मेडिसिन होता है ये भी दिया जाता है फॉर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। एंड एस्पिरिन एंड लिवोप्रोफेन, ये भी आप हो सके तो याद रख लेना। तो ये भी पेप्टिक अल्सर का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें एड ऑन होता है। स्ट्रेस अगर ज्यादा होगा, अगर ज्यादा स्पाइसी फूड आप खाओगे, लाइक गोलगप्पा हो गया, सेम चीज कोलकाता में फुचका हो गया, चाट हो गया कोई, देन आपका जो मतलब कोई भी चटपटा मसालेदार हो गया, राइट, ज्यादा से ज्यादा एसिड सिक्रेट करने वाला, तो अगर ये सब चीजें आप ज्यादा खाओगे ना तो ये होने का चांस और भी बढ़ जाए। Prebiotics have an important role in the maintenance of immunologic equilibrium in the GI tract through direct interaction with immune cells. Right? So this is important. See, prebiotics is a new concept. तो मैं तो ऐसे ही कराने लग गई, लेकिन after peptic ulcer this is a concept here. So this is also an important concept to discuss. तो प्रोबायोटिक्स होता क्या है पहले वो आप जान लीजिए, फिर इसके जो फायदे हैं, इसका जो बेनिफिट्स है ना, वो हम डेफिनेटली विल डिस्कस दैट आल्सो। सो प्रीबायोटिक्स आर
not pre, probiotics. So probiotics have an important role in the maintenance of immunologic equilibrium. So GI tract अगर आप सही से GI tract का जो इम्यूनो प्रॉपर जो इम्यून सिस्टम होता है, गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया का जो बैलेंस होता है, अगर वो आप सही से रखना चाहते हो तो प्रोबायोटिक इज वेरी मच एसेंशियल, राइट. एंड इसीलिए आपको जो टाइटरिन फाइबर हो गया आपका, देन आपका इंडिविजुअल जो आप खा रहे हो उसमें फाइबर होना बहुत जरूरी है, ठीक है. नॉन स्टार्च फाइबर मतलब जो अलग से डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, गुड बैक्टीरिया फॉर्म होगा बेसिकली इन योर गाट. तो ये क्या करेगा, गाट हेल्थ को अच्छा करेगा. एंड ये जो इंडिविजुअल एस्पेक्ट है ये इम्यूनो मॉड्यूलेशन करता है. गाट का जैसे मैंने बोला, गाट माइक्रोबायोटा जो है उसका जो प्रॉपर कॉम्पोजिशन होना चाहिए उसको इंप्रूव करता है. गाट डिसऑर्डर को डिक्रीज करता है. एंड गाट इन्फेक्शन अगर है तो उसको भी रिड्यूस करता है, राइट. मेटाबॉलिक इफेक्ट में विटामिन सिंथेसिस को इंक्रीज करेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज करेगा. एंड लैक्टोज इंटॉलरेंस अगर किसी को ये जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है तो उसको भी ये रिड्यूस करता है. देन इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा एंड इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करेगा. तो ये चीजें आप सॉरी प्रोबायोटिक का जो फंक्शन है इसमें ये सब चीजें आता है ना, आपको ये डेफिनेटली याद रखना. लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है ये डेफिनेटली आप थोड़ा बहुत स्पेसिफिक वे में जानना जरूरी है. Lactose derived prebiotics have great potential for GI health, especially in case of diarrhea or constipation and the prevention of IBS. So अगर आप प्रीबायोटिक्स में लेते हो तो यस आपका जो लैक्टोज मतलब मिल्क का जो ऑप्शंस है ना, तो योगर्ट हो गया, तो इसमें भी डेफिनेटली बैक्टीरिया होता है एंड वो प्रीबायोटिक्स के तौर पे काम करता है. एंड डेफिनेटली वो भी आपके जो गाट हेल्थ है उसके लिए बहुत ही ज्यादा बेसिकली अच्छा होता है. सो IBD मतलब इरिटेबल इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज, कोलोन कैंसर, दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट. इसको भी रिड्यूस करने में ये जो प्रीबायोटिक्स है इसका योगदान है. तो ये भी आप जरूर फॉर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव आप याद रखोगे. लैक्टोज इंटॉलरेंस इज नथिंग बट अ कंडीशन जिसमें क्या होता है, पीपल अनएबल टू बेसिकली डाइजेस्ट लैक्टोज शुगर, राइट. इट इज अ डाइसैकेराइड, आप जानते हो. किसमें होता है, ये मिल्क में होता है. तो ये इनिशियल डेज में देखा जाता है कुछ बच्चे ये मिल्क, काउ मिल्क स्पेसिफिकली, इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लैक्टेज एंजाइम, ठीक है. एंड नॉट ओनली इन केस ऑफ चाइल्ड, इन सम केसेस फॉर एग्जांपल the adult also who are not having this lactase enzyme, please consider this name. So अगर किसी के बॉडी में ये एंजाइम इनफ अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है तो भी डेफिनेटली ये डाइजेशन में सब लैक्टोज डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है. एंड बेसिकली इसमें होता क्या है, पीपल आर अनएबल टू डाइजेस्ट द मिल्क ऑप्शंस ओनली, राइट. तो इसको भी लैक्टोज इंटॉलरेंस बोला जाता है. एंड ये होता है ड्यू टू द लो लैक्टेज लेवल इन देयर बॉडी होती. एंड सिम्टम्स में क्या होता है, सिम्टम्स देखा जाता है आफ्टर टेकिंग डेयरी ऑप्शंस, मतलब दूध और दूध से बना हुआ कोई भी चीज अगर आप खा रहे हो, तो अगर आप देखो कि आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपके बॉडी में लैक्टेज का मात्रा जो होना चाहिए वो इनफ नहीं है, ठीक है. कॉन्स्टिपेशन ये भी एक GI डिजीज है. सो कॉन्स्टिपेशन इज एन इरेगुलर और डिफिकल्ट पासेज ऑफ फेसिस, मतलब आपका जो स्टूल है
स्टूल का जो पास होना जरूरी है, लाइक वो सही से नहीं हो रहा है ड्यू टू द मतलब इरेगुलर हो रहा है। क्यों ऐसा होता क्यों है? ऐसा जो कलर आप देख रहे हो कि अलग से मतलब प्रॉपरली स्टूल फॉर्म ही नहीं हुआ है कि वो अच्छे से निकल जाए बॉडी से। सो ऐसा जो आप देख रहे हो वो ऐसा मतलब लंपी लंपी सा होता है, लंप हार्ड लंप फॉर्म हो जाता है। अगर किसी को भी कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है ना, तो आप लोग जानते ही हो। सो अगर आप अच्छे से पानी नहीं पी रहे हो, प्रॉपरली डाइजेशन आपका नहीं हो रहा है ड्यू टू बेसिकली द वाटर दैट द लेवल ऑफ वाटर यू हैव टू टेक रेगुलरली, वो आप नहीं ले रहे हो, और वेजिटेबल अच्छे से नहीं खा रहे हो, तो अगर पानी बॉडी में नहीं है ना, तो स्टूल फॉर्मेशन नहीं होता है। तो स्टूल फॉर्मेशन के लिए लगता ही है फाइबर एंड वाटर। तो फाइबर एंड वाटर बोथ ऑफ दिस थिंग्स आर वेरी मच नेसेसरी फॉर स्टूल फॉर्मेशन। तो वो अगर नहीं है, आपका जो वाटर आप सही से रेगुलरली नहीं पी रहे हो एंड आपका फाइबर भी बॉडी में नहीं है, मतलब वेजिटेबल्स आप नहीं ले रहे हो अच्छे से, तो उसमें भी ये जो कारण है ना, इनफ है कॉन्स्टिपेशन फॉर्म करने के लिए। तो यस, दिस वाज द लास्ट टॉपिक बट नॉट द लीस्ट। एंड जैसे मैंने बोला प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स, तो ये जो कॉन्सेप्ट है भी आप याद रख लोगे। एंड ये जो प्रीबायोटिक्स है, शायद मैंने बोला होगा कि फाइबर का जो रिमेनिंग पार्ट है वो प्रोबायोटिक्स होगा, आई थिंक मैंने यही बोला होगा, लेकिन नो, वो प्रीबायोटिक्स होगा। ठीक है, प्रोबायोटिक्स मतलब लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैं एक लाइन में बोल देती हूँ कि आप फॉर एग्जाम्पल कोई लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप ले रहे हो थ्रू द फूड, तो वो होता है आपका प्रीबायोटिक्स। ठीक है, प्रॉपर स्पीसीज प्रॉपर डोज डेफिनेटली डिजीज को कम करने में भी हेल्प करता है ये, एंड यस क्लिनिकली भी ये समटाइम्स अप्लाई होता है। तो आज आपने क्या कौन सा टॉपिक हमने कवर किया है, वो मैं फिर से एक बार रिपीट टेलीकास्ट कर देती हूँ। सीलियक डिजीज, इसमें सीलियक डिजीज के साथ ग्लूटेन इंटॉलरेंस और सेंसिटिविटी भी आपको जानना होगा। नेक्स्ट ये तो इसका जो सिम्टम्स होता है। देन आईबीएस क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन, मतलब आईबीडी इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज जो होता है, इसका जो दो क्लासेस कॉन डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसमें कोलाइटिस में इंफ्लेमेशन पूरा जो स्मॉल इंटेस्टाइन, जो आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसका अगर कोई भी एक साइड पकड़ लेता है तो पूरा उसका कवर, मतलब इंफ्लेमेशन में कोई इंटरवल नहीं होता। ऑन द अदर हैंड साइड कोलाइटिस में इंफ्लेमेशन में इंटरवल होता है। तो स्पेसिफिकली इन केस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, सॉरी कौन डिजीज में इन्फ्लेमेशन इंटरवल में होता है। सो कोलाइटिस में क्या होता है, कोलाइटिस में आपका ब्लैडी होता है, लेकिन कौन डिजीज में आपका सब कुछ होता है, फीवर आता है, एंड आपको और भी जो सिम्टम्स अगर देखा होगा आपने, डायरिया, पेन हो गया, वो आता है, लेकिन ब्लडी डायरिया सिर्फ कोलाइटिस में ही होता है। तो ये आप डिफरेंस भी जो 4-5 दिया गया है वो भी आप कर लोगे। देन आपका हो गया पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर में ड्यूडेनल अल्सर क्या होता है, स्टोमक अल्सर क्या होता है, एंड अगर कोई बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन के थ्रू मतलब इन्फेक्शन के थ्रू होता है, तो ये इन्फेक्शन होगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ओके, सो वन मोर टर्म आई वुड लाइक टू एड ऑन। अगर बोला जाता है कि हाड़ी कारी डिजीज कौन सा वाला है ना, हाड़ी कारी, हाड़ी कारी डिजीज, तो यस हाड़ी कारी डिजीज मतलब आपको जो समझाया गया है दैट इज योर अल्सर ओनली। आपका अल्सर जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के रीजन से हुआ है, मतलब इन्फेक्शन के वजह से रीजन से आपको बॉडी में क्या हुआ है, अल्सर फॉर्मेशन हुआ है स्टोमक में, तो तब आप बेसिकली इसको हेलिकोबैक्टर हाड़ी कारी वरी बोला जाता है। ठीक है, इसका जो कारण है वो भी जानोगे, सिम्टम्स जानोगे, देन प्रीबायोटिक्स का कंसेप्ट जानना होगा, फंक्शन क्या है वो डेफिनेटली जानना होगा, आप जानते भी हो तो वो याद रखिए ना। देन लैक्टोज एज अ प्रीबायोटिक्स कैसे काम करता है, ये जो सब कुछ क्या क्या रिड्यूस करता है, ये उधर अलग से बोला भी गया है। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ एडाइनल फ्लोरा, आपका कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो भी कम करता है, मेमोरी को इंक्रीज करता है, जनरल कॉग्निशन को इंक्रीज करता है। तो ये चीज आप
जरूर याद रखो। नेक्स्ट लैक्टोज इंटॉलरेंस होता क्या है, एंड उसका जो फूड, क्या क्या फूड लैक्टोज इंटॉलरेंस में अवॉइड करोगे, दैट इज योर मिल्क, चीज, आइसक्रीम, ब्रेड, केचप, चॉकलेट। तो यस, 90% Asian population and African populations both are of this continent's populations are usually having this lactose intolerance. तो अगर आप भी lactose intolerant हो तो ये कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है कि जो बहुत अनकॉमन हो जाता है, बेसिकली अनकॉमन है, तो नो, दैट इज नॉट द सिनेरियो। सो दिस इज वेरी बेसिक एंड ये बहुत ही कॉमन सा चीजें हैं। देन कॉन्स्टिपेशन, तो यस, more or less these topics are very much important for your WPSLST nutrition examination right now, just after this month only going to happen in West Bengal. Then for UGC NET Home Science, some of the very specific type of questions I have repeatedly mentioned that it could come and already have been asked by UGC, तो वो भी आप जरूर अच्छे से याद रख लोगे। एंड देन आपका हो गया फॉर WP सेट, आप फॉर दिसंबर आप अगर टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए भी ये जो भी टॉपिक्स हमने आज इस क्लास में हम लोगों ने कवर किया है तो वो इम्पोर्टेंट रहेगा। सो डू वॉच इट एंड लेट अस नो दैट व्हाट एल्स यू आर वांटेड टू learn or know regarding from your GI tract or related diseases. Definitely, I would like to request you all to all of the learners this individual platform कि आप लोग जाए एंड जो भी वीडियो आप देख रहे हो लोग अच्छे से वो कंसेप्ट को भी डेफिनेटली आप ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर एक बार में आपको समझ नहीं आ रहा है फिर भी आप चाहे तो यूट्यूब में जाके दूसरी और तीसरी बार भी आप देख सकते हो। एंड यस, वन इंडिविजुअल aspect is that do subscribe the channel, right? Because if you are willing to see more such videos, that yes, you are needed to learn these aspects. See, they are PhD scholars, chair qualified individual scholars here are going to take classes, not only in case of YouTube, but definitely UGC NET Home Science courses, WPM, SLST courses, all of these courses are right now also ongoing in our platform only. So if you are willing to take the course also, you can also definitely consider, definitely you can contact with us, the number we have given here for your, in case of any kind of query you are having. So yes, here the number also we have given, and डेफिनेटली आपको फर्स्ट पेज में ही मिल जाएगा ये नंबर, एंड आप चाहे तो कांटेक्ट करके इनरोल भी कर सकते हो। फॉर दिसंबर नेट वी आर ऑल्सो टिल नाउ वी आर टेकिंग इंडिविजुअल एनरोलमेंट अभी तक चल रहा है। तो अगर आपको लगता है कि यस स्पेसिफिक प्रिपरेशन इज नीडेड देन डू जॉइन अस। आपको you are not going to regret, because the last batch of students are also have been qualified. Each and every individual have been qualified, if not by JRF, by definitely LS assistant professor सबका ही qualified हुआ है and JRF भी qualified हुआ है। तो yes, अगर आप लोगों को कुछ भी जानना हो तो आप इस नंबर पे मैसेज करके और कॉल करके जान सकते हैं। Thank you, and do watch it, subscribe the video, and definitely share it with your friends. Thank you, everyone.